Hi, hello, welcome to Ankurayas. This is Nilesh. Today we are discussing the last 60 days best strategy for the economy. This session will be in a bilinguals, considering the both Hindi and English. Even though the PPT or the language is with the English, but I'm trying to explain the few things in Hindi also. Just before moving ahead, I'm just give a short overview about myself. Myself, Mr. Nilesh Doke. I'm a BTech in mechanical engineering and I have experience in the civil services for the prelims and mains also. On base of my personal experience, I'm just on the platform of digital Ankur I'm just giving the overview about the last 60 days best strategy, how to prepare the economy, potentials will be high. We will discuss what are the high yielding topics, what are the key area, key terms and concepts and rest of things to how to handle the pressures. So let's start. Is I'm audible or video is audible? Okay, then fine. So before moving ahead, I'm just putting why the first subject as economics for this 60 days preparation. Just have an overview why economy is important. Economy, although that more than the 90% yet aspirant feel the economy is so hard, still the case is I just believe that economy is the most high yielding topics in entire subjects. There are certain things, the basics concept, once you have go through the in details and your confidence will be boosted. So this is the statistics in front of you. That's what is the weightage of every subject in a last 2022 prelims. I'm just giving the here the economy is almost 19% is covered with the economy. Ecology and environment is almost 21%. Polity is a 15%. But the three topics are most important for your prelims. So just we focus on first is the economy. Secondly, we will go for the polity, and third we come with the ecology. This will be your the preparations priority of the subject. But here we find that there the 90% questions, 19 questions is almost from economy side. But out of that, we will divide it. This is the 15 questions from your macroeconomics, and rest of the 3 to 4 questions will be your agroeconomics and agri-related schemes, that government scheme. सो इफ यू कंसीडर दिस द 15 क्वेश्चन, अगर ये 15 क्वेश्चंस को हम ठीक से पढ़ाई करते हैं तो मैं जानता हूं कि अगर हाइडिंग टॉपिक के साथ आप 12 क्वेश्चंस इजीली कवर कर सकते हैं. अगर इन 12 क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन भी सही आ सकने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो यू विल गेट द एटलीस्ट 20 मार्क फ्रॉम इकोनॉमी. एंड यू नो दैट द लास्ट 2-3 years cutoff, we will see this is cutoff with 95 plus minus 2 or 3 in the range of this, even the lower than this also. अगर आपको ये 95 मार्क्स का कट ऑफ क्रॉस करना है तो दिस 20 मार्क्स विल प्ले द मोस्ट क्रिटिकल रोल. So that's the reasons why I'm just giving the first priority to economy. Yes. So let's move on the next. These are the question trend for last 10 years. How many questions will come economy? Although we have considered the 20%, but if you consider last 5 years average, there we find somehow the 15 questions from your macroeconomics, and these 15 questions we will see how they have been bifurcated by topic wise, और कौन से टॉपिक हाई यील्डिंग है, कौन से टॉपिक का प्रिपरेशन पहले करना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो चीज को हम डिटेल में आगे देखेंगे. Just moving the next that so why economy is so hard. बहुत सारे बच्चों को बात करने के बाद, इवन द एस्पिरेंट और खुद एक एस्पिरेंट होने के बाद और 2-3 फिल्म का एक्सपीरियंस होने के बाद ये हम बावजूद कर सकते हैं कि इकोनॉमी हार्ड तो है. What are the aspect that economy making the hard? 90% people say economy is high and they have to try to move away from the economy. What are the things economy is high? Just we have targeted some points. First point is technical subject. इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसमें टर्म्स है और टर्म के साथ साथ कंसेप्ट है. वो जो कंसेप्ट और टर्म्स है एक कोरिलेटेड रहते हैं. कि मान लो कि आप 10 चैप्टर है, 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में हर बार आपको
पहले वाला कंसेप्ट लास्ट के चैप्टर में भी यूटिलाइज हो सकता है, और उन कंसेप्ट का एक इंटर रिलेशन रहता है। जब तक आप उन कंसेप्ट का इंटर रिलेशन नहीं समझोगे, इंटर कनेक्शन नहीं समझोगे, तब तक आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे कि अवर आंसर विल बी एक्सप्रेस। मान लो अल्दो देयर आर 3 to 4 स्टेटमेंट, एंड आउट 3 to 4 स्टेटमेंट के 2 कंसेप्ट आपको सही आ रहे हैं, लेकिन एक कंसेप्ट में जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन हो 50% कैटेगरी में जा सकता है। इसीलिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। ज्यादातर बच्चे नॉन टेक्निकल वाले होते, वो इकोनॉमी को सुन के ही डर जाते हैं। बट ये सब रूमर्स है। अगर आप सही से प्रिपेयर करोगे तो इस ऐसी कोई चीजें नहीं आ सकती। Although we will see कि how can we come across the technical subject. The second topic is the current plus statics. अब पेपर को एनालाइज करते वक्त बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि ये इकोनॉमी करंट एस्पेक्ट पे ही आता है और उसमें स्टैटिक का इतना रोल नहीं होता है। बहुत सारे एनालाइजर का रोल रहता है कि वो कहते हैं कि although its topic is current based, but they will ask the backend linkage in static portions. But I say that this is the blended mixture of your static and current affairs. So how to prepare this both static and current will be become the difficult, and that the current the boundary lines of that current syllabus was are just expanding. So expanding boundary conditions are not easy to study. और उसकी वजह से जो होता है कि बच्चे कहते हैं कि यार 2 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं मिलता, फिर भी स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे, और उससे वो यील्डिंग पोटेंशियल कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं तो सिलेबस एक एलिफेंटा साइज सिलेबस बन जाता है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के वेबसाइट से या यूपीएससी के मैनुअल में देखेंगे, जो प्रीलिम के लिए सिलेबस दिया है वो 2 to 3 लाइन्स में ही दिया है। उसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली ऐसी कोई चीजें ज्यादा बताई नहीं है। लेकिन although there is no mention in the syllabus in the things, implicitly there are much more of the topics, and these core topics have very huge potentials. If you analyze them, we will see that key how hiding topics and how they have implicitly come from your syllabus and everything. But the size of syllabus is too hard. Although that static के साथ साथ आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और करंट अफेयर में एक चीजें हो रही है कि करंट अफेयर को लिमिट्स नहीं है। क्योंकि आज अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखेगा कि आज तक आरबीआई या इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी का रोल पूछ रहे हैं, अब वो वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज का बैंक है, और वेस्टर्न कंट्रीज के बैंक में अगर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, वहां का इंटरेस्ट लेवल चेंज होता है, तो वो इंटरेस्ट का इंडियन करेंसी पे, इंडियन इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अल्दो ऐसे क्वेश्चन है दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसा एक टॉपिक है जिसमें वो, जैसे कि लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन था आईएमएफ पे, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट वाला, तो उस बेस पे उसकी जो डेप्थ है वो हर साल इंक्रीज होती जा रही है। तो एस्पिरेंट को ये डर लगता है कि हम कितनी डेप्थ तक पढ़ाई करें। और अल्दो इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम के लिए, लाइक इकोनॉमी देयर आर मोर 5 सब्जेक्ट। सो अगर उन सब चीज सब्जेक्ट को इतने इन डेप्थ पढ़ना है और वो भी प्रीलिम क्रैक करना है, तो इट्स मेक अ डिफिकल्ट थिंग। हाँ, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या काम करें, हम सिलेबस को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस बेस पे इकोनॉमी लुकिंग हार्ड। उसके लास्ट वाला हम फोर्थ वाला टॉपिक्स देखेंगे, उसमें है कि नो सिंगल बुक टू कवर द कंप्लीट इकोनॉमी। although I already mentions कि ये एलिफेंटा साइज सिलेबस है, यहाँ पे करंट अफेयर जैसा डायनामिक पोर्शन है और स्टैटिक पोर्शन भी है। और मार्केट में जितनी किताबें हैं उन किताबों में कितना भी करंट अफेयर अपडेट हो जाता है, लेकिन हर साल कुछ दूसरी क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूशन बेस है या करंट अफेयर बेस है, वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स ही आते हैं। तो ऐसा कौन सा बुक यूटिलाइज करे कि वहां से सब कंसेप्ट होते हैं। तो देर इज नो सिंगल बुक्स फॉर द इकोनॉमी, यू जस्ट नीड टू गो फॉर द अवेलेबल सोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। और मेरा तो ये मानना होता है कि आपका रिसोर्सिंग मटेरियल कौन से क्लास का वो मैटर नहीं करता है, वो आपके लिए कितना अंडरस्टैंडेबल थिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बुक आपको इजीली अंडरस्टैंड होती है तो दिस बुक इज द बेस्ट फॉर यू। इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम योर टॉपर्स व्यू एंड माय व्यूअर्स। यस, द नेक्स्ट इज लो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे रूमर्स पहले से ही थे कि इकोनॉमी में बहुत सारी टर्म्स आती है, स्टैटिक्स फिगर पूछे जाते हैं,
करंट अफेयर्स में ट्रेंड पूछे जाते हैं। आपको लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड पता होना चाहिए। इंडिया की जीडीपी के कंपोनेंट्स और जीडीपी के वेरिएशंस क्या है? इंडिया का रैंक क्या है? बहुत सारे आउटलुक का फाइंडिंग क्या है? बट ऑल्दो दिस थिंग्स इज आस्क्ड इन यूपीएससी, बट यूपीएससी इज नॉट अ फैक्चुअल एग्जाम, दे इज अ कंसेप्चुअल एग्जाम। और उसमें आप फैक्चुअल पे काम करोगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो होगी, तो उस बेस में एक चीज हो जाती है कि आप उस डेप्थ तक पहुँचते नहीं है। आपको बस वो रिपोर्ट का फाइंडिंग पता नहीं होती है ना, आपको रिपोर्ट का नाम पता होता है, कौन-सा इंस्टीट्यूट निकाल रहा है, लेकिन आज यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन में देखेंगे, तो पहले 4-5 इयर्स बिफोर एक ट्रेंड था, इवन 2020 के बिफोर का एक ट्रेंड था कि उसमें आईएमएफ होगा, देन डब्ल्यूटीओ होगा या वर्ल्ड बैंक, इन लोगों के जो रिपोर्ट्स होते हैं, उस पे क्वेश्चन बनते थे। अभी भी रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट पे क्वेश्चन कौन सी रिपोर्ट निकाल रहा है ऐसा नहीं आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन डेप्थ इज चेंज। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन हाउ, व्हाट आर द फाइंडिंग ऑफ दैट रिपोर्ट। जैसे कि एनवायरनमेंट में भी सेम थिंग हो रही है। हमने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें जो क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ का या आई थिंक डब्ल्यूएचओ का क्वेश्चन था कि जो पोल्यूशन कंट्रोल के जो पैरामीटर्स थे उसमें क्वेश्चन पूछा था, उसमें उन्होंने स्टैटिक्स फिगर पूछी थी, उसका एक रिपोर्ट था, उसका फाइंडिंग्स इन डेप्थ पूछा था। तो वो वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमें डेप्थ बढ़ानी पड़ती है। तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होना चाहिए, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस रूमर्स करके हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना रही। मेक योर प्रिपरेशन इज सिंपल थ्रू आउट अ जर्नी। तो लास्ट एक और पॉइंट है कि ये सब्जेक्ट कन्वेंशनल है। ऑलरेडी वी हैव सेड कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। कन्वेंशनल अप्रोच से अगर स्टडी करोगे, सपोज आप एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं बनेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में भी टर्म्स है, लेकिन वो टर्म का करंट अफेयर्स इतना ज्यादा लेना देना नहीं रहता है। इकोनॉमी के हर एक टर्म्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं। चलो मान लो कि हमने एक चीज देखी, वी हैव टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन। हमने इन्फ्लेशन का एग्जांपल ले लिया, और इन्फ्लेशन में वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल क्या है और रेट क्या है। उसमें सीपीआई का रोल भी हमने पढ़ लिया, डब्ल्यूपीआई का। लेकिन वी हैव फॉरगेटेड कि हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन योर इन्फ्लेशन। इफ यू हैव क्लियर कि फिस्कल पॉलिसी का मॉनेटरी पॉलिसी के साथ क्या रिलेशन है, अगर फिस्कल पॉलिसी एक्सपांशनिंग हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा, ऐसी जो चीजें हैं उन चीजों पे हमें अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगी, और तो और हम एक बोलते कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन लेके मॉनेटरी पॉलिसी इज बेटर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और फिस्कल पॉलिसी टू बेटर टू कंट्रोल, जो चीजें हैं, जो टर्म्स है, उनको इंटरकनेक्शन नहीं करोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रो रहेगी। इसीलिए इस सब्जेक्ट को एक डिफरेंट एंगल से ही पढ़ना है हमें, और वो कैसे पढ़ना है वहां पे आगे देखेंगे। अब तक हमने ये देख लिया कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, और इकोनॉमी फिर भी इकोनॉमिक्स क्यों हार्ड है, और उन सब चीजों पे हम लोग नहीं आ रहे हैं। दिस इज द हाई यील्डिंग टॉपिक लिस्ट। मोस्ट ऑफ लास्ट 10 साल के एनालिसिस के बेस पे हमने कुछ ऐसे टॉपिक को पिकअप किया है, जो टॉपिक हमें वे ऑफ फाइंडिंग कि ये टॉपिक से हर साल 10 to 13 क्वेश्चन तक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं। although 2-3 question is out of the box, but we are not worrying because we are in a phase of last 60 days, and if you in a phase of last 60 days में हम हर चीज पे फोकस करेंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। हमें इन दिनों में हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे काम करना है, और इन्वायरमेंट और यहाँ पे इको और पॉलिटी ऐसे दो सब्जेक्ट है जिनमें हाई यील्डिंग टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। उसी क्वेश्चन पे, कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। अगर हम उन सब चीजों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गो विद द पॉजिटिव अप्रोच एंड वी विल विन यूर द रेस टू क्रैक द प्रीलिम। So before just overview about the high yielding topics, we will see ki what is it. This is the topic list for prelim to 2022 and 21. So let's see what are the topics, what are the question in 21, what are the trends they will ask, what was the date of that question also. So the first question we will see that there the question on the appointment of governor. Yes. So appointment of governor पे क्वेश्चन आ रहा था, वो बैंकिंग सेक्टर से ही है। सो आरबीआई बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी पे डेफिनेटली एक तो दो क्वेश्चन सवाल आते हैं, ये हाईलाइटिंग टॉपिक में आता है। उसके बाद एक ये तो करंट में भी रहता है, लेकिन ये करंट के बाद आपको स्टैटिक पोर्शन के लिंकेज पता होने चाहिए कि उसका टेन्योर क्या रहता है, उसका जैसे दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लाइन ऑफ योर पॉलिटी लाइन।
कि पॉलिटी में जैसे है उसी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर पे पूछा था। उसके बाद एक कैजुअल वर्कर का क्वेश्चंस था उस साल, तो कैजुअल वर्कर में हमने देखा कि जो लेबर लॉज को कोडिफाइंग और मॉडिफाइंग हो रहा है, गवर्नमेंट हैज पुटिंग अ सर्टेन बिल एंड combining the two or laws to that's one nations one laws concept. Based on that they have changed some worker laws, and based on that there was the question on casual workers. Although this question was static plus your current affairs, but the static linkage was not easy to approach. But there was one hidden key कि उसमें एक पहला वाला स्टेटमेंट था जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड था। अगर आपको वो स्टेटमेंट बहुत सही से पता है और आप उसको एलिमिनेट करोगे, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बन रहा था। बहुत लास्ट ईयर का ट्रेंड्स हमने देखा, क्वेश्चन इकोनॉमी के हार्ड डेफिनेटली थे, लेकिन वो एलिमिनेशन से ज़्यादा बन रहे थे। हम आगे वाला एक नेक्स्ट सीरीज ला रहे हैं जिसमें जो कि पीवाई के बेस होगा, उसमें हम बता देंगे कि कौन से क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से कितना इजीली जा सकते थे, इसकी इन डेप्थनेस हम क्यों बढ़ा रहे हैं, एक स्टेटमेंट को पढ़ के हम खुद को वहाँ पे प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को हम आगे डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज आ रही है पीवाई की, को उसमें बता देंगे, और एक लॉजिकल रीजनिंग और एक अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन डेफिनेटली हम बिल्डअप करेंगे इन 60 डेज में। लेकिन चलो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिसेशन पे 2021 में पोस्ट कोविड इकोनॉमिक थी। पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी में हमने देखा कि पोस्ट कोविड इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी रिसेशन में है, ये बहुत सारा न्यूज़ था, उसके साथ वी शेप रिकवरी वाला कंसेप्ट था। तो वो बेस्ड ऑन दैट दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक रिसेशन आल्सो। देन दिस साल आल्सो दैट्स की फैक्टर ऑफ इम्पैक्ट डिमांड एंड गुड्स पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट इस साल भी है, क्योंकि दैट्स रशिया यूक्रेन वॉर में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुका था और ग्लोबल इन्फ्लेशन हाई लेवल पे है, तो उसी लाइन में क्वेश्चन आने की संभावना इस साल भी ज़्यादा है। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में उस साल क्वेश्चन था, तो एक्चुअली वहाँ पे पंजाब और महाराष्ट्र का एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, उस बैंक में क्राइसिस हुए थे, और उस क्राइसिस के बाद जो सिटीजन को इन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, उन सब चीज़ों को देखते आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैव वर्क आउट दैट्स की they have come with the legislations and the rights of that policy has transferred to the RBI. तो उस लाइन पे करंट अफेयर पे वो क्वेश्चन पूछा था। दिस क्वेश्चन वाज प्योरली करंट अफेयर बेस्ड। अगर आप करंट अफेयर कर रहे होते तो इजीली एसेट हो सकता है। और अब गवर्नमेंट बॉन्ड, लास्ट ईयर भी मैंने आपने अप्रोच किया होगा, ये गवर्नमेंट बॉन्ड का क्वेश्चन है। अगर आप 2022 में जाते हो तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे क्वेश्चन था, कन्वर्टिबल बॉन्ड पे क्वेश्चन थे। ये जो टॉपिक है जो कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक है, फाइनेंशियल मार्केट से हर साल 2-3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन लास्ट ईयर इस सेक्शन से ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से आ रहे, और स्पेशली दे हैव वर्क ऑन योर कैपिटल मार्केट्स, मनी मार्केट आल्सो। बॉन्ड क्या है, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स एंड दीज थिंग्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस एंगल से हमें वहाँ पे फोकस करना चाहिए, उन टॉपिक्स को ज़्यादा वैल्यूएबल देना चाहिए, करंट अफेयर वहाँ से पढ़ना चाहिए। डिवैल्यूएशन एक और टॉपिक है, एक्सटर्नल सेक्टर वाला। एक्सटर्नल सेक्टर से हमने देखा कि हर साल 2 to 3 क्वेश्चन डेफिनेटली ही आ रहे हैं, और उसमें करेंसी का इम्पैक्ट, अगर डिवैल्यूएशन होता है या अप्रिसिएशन होता है, डिप्रिशिएशन होता है, हाउ, उसमें सिंगल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने ऑब्जर्व किए तो हमें देखा कि अगर 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो वो किसी एक टॉपिक पे नहीं बना है। उस क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिक से आ रहे हैं और वहां पे एक अलग कंसेप्ट है, उसका इंटर रिलेटेबिलिटी ज्यादा है। सो अगर आप किसी टॉपिक या किसी बुक से कवर करोगे तो वहां पर सही नहीं रहता, आपको इंटर करेक्शन खुद करना है, तब जाके ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम क्वेश्चन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगेन हमारा ये क्वेश्चन एक्चुअली पूरा स्टैटिक पे था। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टूल्स कौन से होते हैं उस पे क्वेश्चन पूछा था। दैट वाज इजी ऑन साइड्स। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ऑन पॉलिसीज, इन्फ्लेशन वाज ऑलवेज द मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स, और उसका इंटररिलेटेड करके बहुत सारी बार क्वेश्चन लास्ट ईयर भी अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन पे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, इन्फ्लेशन पे था। अगेन ये बॉन्ड में भी इन्फ्लेशन का ही कंसेप्ट था, और उसके बाद नहीं, 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थे। तो देन ब्लैक मनी का इम्पैक्ट, ऑल्दो दैट्स ब्लैक मनी बहुत साल न्यूज़ में हर साल भी रहता है, बट उन्होंने ब्लैक मनी को हमारे
इंडिया का टैक्स बेस के साथ कंसेप्चुअल वाला एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिलना बहुत इम्पॉसिबल था। उस चीज़ में आपको ऑप्शन बाय जाके आंसर्स को ढूँढेंगे। हम आगे वाले कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं कि उस क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच वाले क्वेश्चन का अप्रोच हमें डिफरेंट जाना चाहिए, वहाँ पे क्या काम करना है। सो अगेन मल्टीप्लाई सप्लाई चेन और मनी सप्लाई मार्केट में मगर आउट आउट दैट्स कॉन्फाइडिंग होता है या मनी सप्लाई बढ़ता है कम होता है तो उसके रिलेशन में बाकी इन्फ्लेशन होगा, देन रिसेशन होगा, उस पे क्या इम्पैक्ट होता है। हर साल क्वेश्चन आते हैं, उसमें मनी के कंपोनेंट पूछे जाते हैं। हाई पावर्ड मनी कौन सा है, नैरो मनी कौन सा है, लिक्विडिटी किस में है, फिएट मनी वगैरह। उन बेसिक कंसेप्ट है वो करंट अफेयर से ज्यादा कुछ लिंकेज मत कराओ। लेकिन उसमें अभी वो सीबीडीबी या डिजिटल करेंसी बहुत न्यूज में है, तो डेफिनेटली इन रिलेशन टू डिजिटल करेंसी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। यस, अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला एक क्वेश्चन था। रिटेल इन्वेस्टर में आरबीआई ने रीसेट का एक पॉलिसी निकाला था, उस प्योरली ये क्वेश्चन करंट अफेयर बेस ही था। देन वाटर क्रेडिट, दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये वाला एक टॉपिक है। उस टॉपिक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ये आईएमएफ वाला रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन था, जो कि एक जो श्रीलंका में क्राइसिस थे, उस ग्लोबल क्राइसिस वाली चीजों को हैंडल करने के लिए आईएमएफ हैव कम विद द 2 इनिशिएटिव। आउट ऑफ दैट रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट वाज वन ऑफ दैट, एंड दे आर डायरेक्टली आस्क्ड ऑन दैट द रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ये किसका इनिशिएटिव था, तो आईएमएफ का। और सेकंड क्वेश्चन वहां पे ही बना था कि जो एक क्वेश्चन था आई थिंक दिस ईयर, उसमें नहीं, यस, एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला भी क्वेश्चन था, जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला वोडाफोन वाला केस चल रहा था, और वोडाफोन वाले केस के रिलेटेड एक टर्म्स थी जो कि बहुत बार करंट अफेयर में भी रिवाइज हो सकती, उस पे क्वेश्चन पड़ा था। और एक क्वेश्चन था G20 कॉमन फ्रेमवर्क, जो कि एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड था। तो हर साल इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आएगा या 1 आएगा। लेकिन इस ये करना बहुत सारा है। अभी इसमें एक ही चॉइस है कि हम यहाँ पे एलिफेंट ऐसा सिलेबस को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे चॉइस है कि हम कितने इंस्टीट्यूशन जाए। उसमें से आप आ जाएंगे तो आईएमएफ है, आपके पास वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, देन जो, और ये आई एम दैट वर्ल्ड बैंक के कुछ 6 बैंक वगैरह है, और डब्ल्यूटीओ है। जो इकोनॉमी के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशन के नए इनिशिएटिव क्या है, उनके रिपोर्ट्स क्या है, उसकी फाइंडिंग क्या है, उस फाइंडिंग का हमें माइक्रो नोट्स बनाते टाइम वो हर पॉइंट को पिकअप करके हमें शॉर्ट में लिख के रखना चाहिए, ताकि हम जब लास्ट के 10 डेज के पेज में जा रहे हैं उस पेज में हमें वो यूटिलाइज हो सके। सो सेंट्रल बैंक का फंक्शंस पूछा था, दो although that was first question on RBI and second last question was on RBI, सेम इन दैट की हियर भी अगर आप पूछोगे तो करेंसी पे क्वेश्चन है, फॉरेन ओन ई कॉमर्स पे क्वेश्चन चल रहा था, कि ये भी पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, बट दिस क्वेश्चन वाज वेरी नॉट इजी टू हैंडल, क्योंकि वहां पे ऑल्दो ऐसा था कि क्वेश्चन होने के बाद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जब उसका आंसर निकाल रहे थे, तो उस समय भी वो क्वेश्चन के आंसर को लेके उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे, बहुत सारे आंसर कीज में भी। सो दीज आर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। उसमें उन्होंने सेक्टरल इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछा था कि ये रियल सेक्टर क्या होता है इकोनॉमी का, ये वाइट बेस जो व्हाइट कॉलर बेस इकोनॉमी होती है रिच, उसके रिलेटेड कंसेप्ट था। लेकिन ये कंसेप्ट टोटली आपका स्टैटिक पोर्शन से था। इनडायरेक्ट ट्रांसफर ये करंट अफेयर्स था। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब तक हमने वो देखा कि एक्सटर्नल सेक्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका इंडिया का एक्सटर्नल प्रोफाइल कैसा है, दैट बीओपी क्राइसिस में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या है, इंडिया का ट्रेंड क्या है, वो वाले थे। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा एक अलग अप्रोच किया था। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का ये पूछा था कि उसका कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, और वो सेग्रीगेशंस में बात करेंगे था। although आपके कंसेप्ट ठीक है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग सही से पता है, तो इट वाज इजी बाय एलिमिनेशन यू कैन डन सच क्वेश्चंस। बट इफ यू आर हैव अ प्रॉब्लम इन कंसेप्शन क्लैरिटी, देन इट्स गो ऑन डिफिकल्ट साइड।
एक और क्वेश्चन था कि जी सेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और हाउस होल्डिंग का सेविंग, जो कि इकोनॉमिक सर्वे पे ही बेस्ड था, जो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का ट्रेंड्स आप देखते हो उसमें के प्रोफाइल में जो शॉर्ट नोट्स आप निकालोगे तो ये डेफिनेटली फायदेमंद होगा। आगे हम एक माइक्रो नोट्सिंग वाला एक टॉपिक है उसमें देखेंगे कि ये नोट्स कैसे बनाने हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें स्कोप कितना रखना है, तो वो विल दिस द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे क्वेश्चन था। ये जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इस क्वेश्चन की डेप्थ और इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है वो भी मैं बता दूंगा। व्हाट आर द फाइंडिंग फ्रॉम दैट क्वेश्चंस कि आगे आने वाले क्वेश्चन इस रेंज में आएंगे तो हमें अपनी डेप्थ ज्यादा नहीं बढ़ानी है कि सबकी सब क्रेडिट एजेंसी को हमने रट्टा मार के नहीं बैठना है कि भैया ये भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये प्राइवेट है, पब्लिक है। हमें उस क्वेश्चन के आंसर को डिडक्ट करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव मोटो पता करना है बस। देन कन्वर्टेबल बॉन्ड बॉन्ड मार्केट से क्वेश्चन था। देन लेबर ब्यूरो पे, जो कि इस बार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आया था, जो कि आप कैजुअल वर्कर का लास्ट का सेम है तो लेबर ब्यूरो पे सेम है, तो हर साल एक क्वेश्चन ये लेबर ब्यूरो, लेबर मार्केट, वर्कर, एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इस पे आ रहा है, तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन इजीली होता है। उसके बाद एक नॉन फंजिबल टोकन्स बोल के एनएफटी बहुत सारा न्यूज में था, एक डिजिटल कॉमोडिटी का मार्केटिंग वाला एक कंसेप्ट था और उस पे क्वेश्चन बनना, ये करंट अफेयर का हॉट टॉपिक्स था। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बोला था कि दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक, तो वहां से क्वेश्चन बना था। सो वी जस्ट केम द रिवर्स। अब हमने क्वेश्चंस को बाइफरकेट सबको देखा था। नाउ वी हैव कम्स कि ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी और अब पॉलिसी, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। मनी सर्कुलेशन और डिजिटल करेंसी से एक क्वेश्चन रहता है, अल्दो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, तो इसका रिलेशन आपके इन्फ्लेशन से और बाकी सब कंपोनेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन वाला करेंसी का कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना जरूरी है। नेशनल इनकम और ट्रेंड्स ऑफ जीडीपी, आपको इस चीज को अभी 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक बार आप ओवरव्यू देंगे तो उसके बाद एक बार बजट पढ़ोगे तो अल्दो इसके ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम जीडीपी में ऐसा सेपरेट क्वेश्चन कम आ रहा है, इसका ब्लेंडेड क्वेश्चन आ रहा है दूसरे किसी टॉपिक के साथ वाला, उसमें एक और कंसेप्ट पूछा जाएगा और उसको आपको वैल्यू करना है। लेकिन अब वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस एंड दैट फैक्टर क्या आते हैं, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर प्राइस, उस सारे क्वेश्चन पे नहीं, एक स्टेटमेंट बन के आएगा दूसरे टॉपिक में। सो इस टॉपिक की जो स्कोप है वो ज्यादा मत बढ़ाइए। जैसे मैं आप इकोनॉमी का एनसीईआरटी है 12 का, उसमें जितना है वो एक चार्ट है, वो चार्ट आप एक बार अंडरस्टैंड कर लो और उसका रिलेशंस। लेकिन जो टर्म्स आपके इकोनॉमिक सर्वे में है और बजट में है उसमें पढ़ो कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस क्या है, जीडीपी डिफ्लेक्टर का रोल इन्फ्लेशन के साथ क्या होता है, नॉमिनल इन जीडीपी इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन और रियल जीडीपी इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, ये सब चीजों को पढ़ना जरूरी है। अगर ये समझ में आएगा तो उससे ज्यादा क्वेश्चंस कुछ नहीं बनेगा इसमें। थर्ड हम जा रहे हैं वो एक्सटर्नल सेक्टर। अभी हम ये तीनों टॉपिक्स है, ये तीनों टॉपिक्स इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में इतना इन डेप्थ पर स्टडी करना है कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आए तो ये क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। हर सेक्टर और हर के ट्रेंड्स क्या है, लास्ट 2 इयर्स का बजट और इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़िए, वहां पे क्या मेंशन है, एफडीआई का ट्रेंड्स इंडिया में क्या चल रहा है अभी, जो कि एफडीआई कितना, एक थोड़ा सा वैल्यू भी याद रखिएगा कि इंडिया का एफडीआई प्रोफाइल कितना है, कितने परसेंट एफडीआई हो रहा है, वो सब चीजें याद रखना। और जो नई नई टर्म्स आती है वो टर्म्स को इकोनॉमी, जैसे कि बारबेल स्ट्रैटेजी आया था, वाटरफॉल अप्रोच, जो कि इकोनॉमिक सर्वे से इकोनॉमी को सस्टेन करने वाली, क्योंकि ज्यादातर हम एक्सटर्नल सेक्टर पे ही इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, उस चीजों से वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक 2-3 रिसोर्सेज से कंबाइन करके पीवाईक्यू को एनालाइज करके उस कंसेप्ट को बना के आपको एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ आपको इन्फ्लेशन पढ़ना ही पड़ेगा और वो कैपिटल मार्केट्स। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन, ये आपका टोटली बजट का ही पार्ट है, इसको सेपरेटली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बजट में क्या क्या चेंज है, एफआरबीएम एक्ट और लेजिस्लेशंस में फिस्कल पॉलिसी में कितने डेफिशिएट्स है, डेफिशिएट प्रोफाइल्स कैसे बढ़ रहा है, although Indian economy is performing well or not well, so that physical policy में physical deficits का प्रोफाइल हायर साइड जा रहा है, लोअर साइड जा रहा है, उसका ट्रेंड पढ़ना जरूरी है। देन पेमेंट एंड फाइनेंशियल सेटलमेंट में जितने न्यू इनिशिएटिव आ रहे हैं, जैसे कि यूपीआई को कौन सा अगर दूसरा है, चाइना का बहुत सारा एप्स हमने क्लोज किया था, उस पे साथ इंडियन एप्स को डेवलपमेंट किया था और वो मार्केट में रहा था। जैसे कि अभी ई रूपी वाला कंसेप्ट है,
ई रुपये वाला। ऑन इन सेम लाइन्स जितने भी करंट इनिशिएटिव है, उस पे अगर क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन इन डेप्थ बनना है तो बहुत सारे करंट कंट्री का जो डिजिटल करेंसी है उसका मैच द पेयर भी आ सकता है। वो भी याद रखें कि कौन सी करेंसी का कौन सा है और कोई करेंसी चेंज हुआ है क्या, वो वाली चीजों पे थोड़ा सा करंट बेस ही पूरा है, इसमें स्टैटिक कोई नहीं रहता। की टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वो देखेंगे, इवन ऑल्दो दैट दिस न्यू सीरीज विल कम कि हम इकोनॉमिक सर्वे बजट की एक सीरीज ला रहे हैं, उस चीजों में हम सब जितनी भी कुछ टर्म्स है वो कवर कर देंगे, उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट वी हैव टू फोकस योर सेल्फ ऑल्सो। देन आई ऑलरेडी मेंशंस दैट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इंस्टेंट जिनके रिपोर्ट्स है, इंडाइसेस है, न्यू इनिशिएटिव, इन तीनों चीजें पे हमें लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट हमारे साथ रखनी है और हमें उसका रिवाइज करना है, उसके की फाइंडिंग्स भी हमें पता होनी चाहिए। नाउ इंडस्ट्रियल्स एंड सर्विस सेक्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि इसको मैप करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है क्योंकि उसमें करंट टॉपिक्स भी आते हैं लेकिन उसको बैकवर्ड लिंकेज देख के थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स जितना पॉसिबल है एक आप एक बार कवर कर दो और ऐसे क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट क्रिटिकल अप्रोच से ही सॉल्व करना पड़ता है। देयर इज नो एनी बुक जस्ट गिव ऑल द क्वेश्चंस और यहाँ से करोगे तो कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इवन आपको इस क्वेश्चन में क्रिटिकल लॉजिक ही लगाना है। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इससे बेटर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे ही से जो ट्रेड्स जो कि ट्रेंड्स है वो करोगे तो उससे ज्यादा एग्रो इकोनॉमिक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कीजिए, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वहां पे सॉइल है, सॉइल से रिलेटेड भी एग्रीकल्चर को बहुत सारा डिपेंडेंसी और इंटरेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन एग्रो इकोनॉमिक्स में ट्रेड सेक्टर्स कौन से हैं, सेक्टर का प्रोफाइल क्या है, ट्रेडिंग्स में कॉमोडिटीज कौन सी हाई साइड है और गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे कि एमएसपी है, एफआरपी है, उस चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए वहां पे क्वेश्चन। और यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वो ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि ऑल्दो द एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स है लेकिन गवर्नमेंट कम विद न्यू टेक्नोलॉजी और वो इधर क्वेश्चन टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशंस पे आएगा और दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग है, देन उसके कंपोनेंट क्या है, उस रेंज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अल्दो उस क्वेश्चन को हम इकोनॉमी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उस क्वेश्चन को ज्योग्राफी में कंसीडर करेंगे या एनवायरमेंट में, वो डिपेंड है। सो लेट्स हाई लिंक टॉपिक हो गया इकोनॉमी का, लेट्स वी विल मूव टुगेदर। ऑल्दो देयर आर मच ऑफ क्वेश्चन, बंच ऑफ क्वेश्चन रहता है एस्पिरेंट के पास कि सर ये क्या करेंगे वो करेंगे। अभी ये 60 डेज वाला स्ट्रेटजी है, ये तो पहले वाला स्ट्रेटजी नहीं है, फिर भी स्टिल इन 60 डेज में क्या रोल है, क्या इन 60 डेज में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि ये वाला जो एस्पिरेंट देने जा रहा है ये फर्स्ट टाइम भी है, फिर भी उसने इसके पहले इकोनॉमी पढ़ी है ठीक से, एटलीस्ट एक बार ही इज गो थ्रू विद एनी रिसोर्स और एनीथिंग एनसीईआरटी। फिर भी ये 12th का एनसीईआरटी एक बार आपको रिव्यू करने की जरूरत है क्योंकि मैंने बताया कि वहां पे एक्सटर्नल सेक्टर का बहुत सही से दिया है, आपको पब्लिक फाइनेंस और बजट में के कंपोनेंट भी बहुत सही से मेंशन है, आपका नेशनल इनकम, जीडीपी, मनी सप्लाई वाला टॉपिक भी सही है। एक 5-6 टॉपिक है वहां पे, आप 5-6 टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए तो बहुत सारे कंसेप्ट फिर से रिव्यू हो जाएंगे और रिवाइवल कंसेप्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो बाकी एनसीईआरटी स्किप किए तो चलेगा लेकिन फर्स्ट यू टू स्टार्ट विद 12th एनसीईआरटी, देन हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर, दैट्स द एंड व्हाट कितने साल के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लास्ट 2 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट और उसमें अभी करंट अफेयर पढ़ते समय आप मुझे नहीं लगता कि आप डेली करंट अफेयर पे टाइम वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करो, इकोनॉमी का जो पूरा 2 साल का कंपाइलेशन है उस चीज को टॉपिक वाइज पढ़िए और उस टॉपिक को आपके स्टैटिक का सिलेबस का नोट्स होगा तो वहां पे अपडेट कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप आपका हाई यील्डिंग टॉपिक वाला जो नोट्स बनाने जा रहे हैं वहां पे डेफिनेटली इसको अपडेट करके रखो। लास्ट के 10 डेज में ये आपका संजीवनी रहेगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो बजट बहुत बड़ा रहता है, इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत रहता है, उसका किसी भी इंस्टीट्यूट का समरी आएगा, उस समरी को ले लो, समरी से आपके खुद के नोट्स बनाओ। और आप खुद के नोट्स नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं है, तो उसको हाईलाइट करके रखो, लास्ट में केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ेंगे, उस अप्रोच से चाहिए। सो नेक्स्ट इज वाई पीआईक्यू। क्या पीआईक्यू को स्किप कर सकते हैं? नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई पीआईक्यू को स्किप करना चाहिए भी, और पीआईक्यू किसको तो कोई एग्जाम निकल भी सकता है। कोर कंसेप्ट रहते हैं, रिपीटेड वही क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस बनते हैं
तो उसी क्वेश्चन के वजह से, और लास्ट 10 डेज में ना आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा। आप लास्ट 10 डेज में पीआईक्यू वाला सीरीज कोई भी लेगा, आई एम आल्सो टेकिंग अ सीरीज, कोई भी यूट्यूब वाला सीरीज उठाओ, इसको एटलीस्ट 2 बार लगाओ। अल्टीमेटली आपका प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है क्योंकि उन दिनों में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहती है। वन नोट्स और कंपाइलेशंस, अभी ये समय नहीं है कि हर एक टॉपिक का नोट्स बनाएं। आप हाई लिंक टॉपिक्स को उठा लो, उसमें से जो चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके फ्लो चार्ट्स, उसके फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स वगैरह बना लो और कोर कंसेप्ट को इंटरकनेक्टेड से लिख लो। समझ में नहीं आ रहा है तो एजुकेटर से पूछ लो जैसे ये कैसे रिलेटेड है। और ज्यादा बेटर है कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो उस टेस्ट सीरीज में पहले तो सेक्शनल टेस्ट सीरीज दीजिए। सेक्शनल टेस्ट सीरीज के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जाओगे तो उसी क्वेश्चंस में वो जो जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको एक तो आपके डायरी में अपडेट कीजिए। अगर आपके पास डायरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो उस क्वेश्चंस को वही आपके पेपर पे लिख के रखिए, उस स्टेटमेंट का रियल में क्या था, वो क्या क्यों रॉन्ग है। क्योंकि लास्ट बिफोर 10 डेज में 5 डेज में आपको एक बार रिव्यू करना है कि कौन से क्वेश्चन गलत किए थे और उसका एस्पेक्ट क्या था। वो वाला स्टडी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने वाला स्टडी रहेगा। सो नाउ दीज आर द स्टेप्स। सो फिर भी हम 60 डेज में एक स्टेप कर सकते हैं। हमारे पास 60 डेज है एंड वी आर कमिंग विद द न्यू अप्रोच, दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। क्या हमें रिवर्स जाना है? वी हैव टू कीप आवर सेल्फ इन द 28 मई को हमारी सिचुएशन क्या होगी, हम 27 मई को खुद को रख रहे हैं और उस वहां से बेस से हम पीछे आ रहे हैं कि 27 मई पे हम गएंगे, वहां पे हमारा जो प्रेशर लेवल है वो बहुत हाई पे होगा। आपने एक बात नोटिस की होगी कि कितने एस्पिरेंट फॉर्म भरते हैं और कितने एस्पिरेंट एक्चुअल में एग्जाम को जाते हैं। ये सब खेल है ना लास्ट के 10 डेज का है। लास्ट के 10 डेज में आपको अगर निगेटिव कॉन्फिडेंस आ रहा है ना तो ये निगेटिव वाइब्स है आपकी, वो आपको रोक देगी एग्जाम देने से। और उस चीजों में आपको अगर आज से स्मार्ट प्ले करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि आप एक नोट्स माइक्रो नोट्सिंग रखिए। आप पीवाईक्यू को लास्ट में क्या करेंगे और हम वो देखेंगे 60 डेज में। जस्ट आई जस्ट गिव फर्स्ट ईयर कि आप पहले एनसीईआरटी पे जाइए, उसके बाद आप लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यू का एक सीरीज कीजिए जिससे आपको एटलीस्ट पता चलेगी कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, एलिमिनेशन से कितने बनेंगे, ये वो होगा। उसके बाद कोई भी एक रेफरेंस का मटेरियल का बुक आपके पास रखिए। आप पढ़ना नहीं है उसको, अगर जरूरत पड़े तो उसके कंसेप्ट को रिवाइव करने के लिए उसे जाके देखना है। आप वो 6 डेज में पढ़ के नहीं होगा सब कुछ इतना तो। वो 2 साल का करंट अफेयर है, इसको इसको मैक्सिमम रिवाइज करना है। उसको नोट्स नहीं बना सकते तो उसको हाईलाइट करके रखना है, इसके बाद देना है। और सेकंड इनिशिएटिव बहुत सारे क्लासेस का इनिशिएटिव भी है, लेकिन आई विल रेफर कि यू जस्ट गो ऑन अंकुर आईएएस, उस ऐप पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। और एक हम 60 डेज का एक प्रोग्राम भी ला रहे हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इवन द सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस को। वहां पे आप अगर जाएंगे तो आपका डेली का प्रैक्टिस होगा, लेकिन डेली 25 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे और वहां से आप आपकी मिस्टेक को अपडेट करोगे तो इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। देन गो फॉर सेक्शनल टेस्ट सीरीज एंड देन हाँ, अभी अभी यही बात थी कि सर ये हाई यील्डिंग टॉपिक के नोट्स है, अगर वो पहले बनाए या करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा सेक्शनल टेस्ट सीरीज दीजिए। आप ये एक बार आपका पूरा करंट अफेयर कवर कीजिए, उसके बाद आप 2-3 डिवीजन के बाद लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहां पे आप की पॉइंट लिख सकोगे और उसका इंपॉर्टेंट आप खुद ही जानोगे कि कौन से ज्यादा न्यूज में है, कुछ पे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक रहेगा। अल्दो इवन आप पहले से ही बना रहे हैं तो, लेकिन उसको आपको अपडेटेड करना पड़ेगा। और स्पेशल फोकस बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो लास्ट ईयर होगा ही। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी से दैट्स कि हमारा अप्रोच 60 डेज में ये नहीं रहेगा, हम रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच से जाएंगे। सो पहले हमारे पास 60 डेज है, 60 डेज में हम इसको 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 में रखेंगे। हाँ, 10 में रखेंगे। ये लास्ट 10 का अप्रोच अलग रहेगा। पहले 20 डेज में बेसिक बुक्स एनसीईआरटी पढ़ो, आपके पास जितना रिसोर्सिंग उसको पढ़ लो। इस पीरियड में आप मैक्सिमम टेस्ट सीरीज दो और ये 10 डेज में उस टेस्ट सीरीज को आप रिवाइज कर दो। जो नोट्स बन रहे हैं उसको रिवाइज कर दो, आपकी मिस्टेक पे काम करो। और लास्ट 10 सीरीज में अगेन यू वर्क ऑन योर पीवाईक्यूज। आपके माइक्रो नोट्स है, वो माइक्रो नोट्स को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम रिवाइज करो और करंट अफेयर को। इस अप्रोच से जाओगे
तो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवर्स डिटेक्शन. सो वी हैव कॉल्ड दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच. खुद को हम 27 मेक पे रख रहे हैं, प्रेशर को एनालाइज कर रहे हैं और उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम बैकवर्ड लिंकेज से काम कर रहे हैं. इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और ये नहीं रहेगा कि आपको हर टाइम मोटिवेशन की जरूरत नहीं ज्यादा पड़ेगी. आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप प्रेशर में नहीं रहेगा तो आपका हेल्थ ओके रहेगा. अगर आप प्रेशर में जाओगे तो आपका हेल्थ डिट्रेस होगा और लास्ट टाइम हेल्थ डिट्रेस होना बहुत टिपिकल चीज रहती है. ये इवन द सेम सेम अप्रोच यू कैन वर्क ऑन अदर सब्जेक्ट आल्सो. ऐसा नहीं कि ये अप्रोच हर एक टॉपिक पे लगा लो. जो बच्चे फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं वो ये वाला 27 में का प्रेशर को नहीं जानोगे, लेकिन जिसने टू वंस दिया है, ट्वाइस दिया है प्रीलिम्स, वो बच्चे जानोगे कि कितनी अनसर्टेनिटी रहती है, वहां पे कितना प्रेशर हाई लेवल पे रहता है और वहां पे क्या काम करना चाहिए. सो दैट्स रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच पे कुछ क्रिटिकल अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चन से हमें क्या लर्न करना है वो भी इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सपोज फर्स्ट वाला मैंने पहले ही बताया था कि ये फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन था. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. ये वाला आपका पूरा ये स्टैटिक का क्वेश्चन है. इसमें करंट अफेयर का ज्यादा कुछ रोल नहीं रहेगा, लेकिन द रेटिंग एजेंसी प्रॉपर्ली नोन एज ACRA is public limited and Brickworth rating is the Indian credit rating agency. अब ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इन दो स्टेटमेंट की आप डेप्थ देखोगे तो बहुत हाई लेवल पे है. तो क्या हम हर आइक्रा जैसे इंस्टीट्यूट का पूरा प्रोफाइल पढ़े या ब्रिकवर्थ पढ़े और इसको छोड़ के आगे, और इस लाइन में अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन बन रहे हैं एजेंसीज पे, तो इतना डेप्थ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते. अगर ये क्वेश्चन डिजाइन करने के पीछे का मोटो फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही था, आपको ये एनालाइज करना है कि वहां पे की स्टेटमेंट कौन सा है. क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आरबीआई रेगुलेट करेगा तो सेबी क्या करेगा? सो अल्दो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज इजीली माइंड. तो यहाँ से ये लर्निंग सीखिए कि कुछ जरूरत नहीं है कि हम हमारा सिलेबस ज्यादा इंक्रीज करें. नहीं, हमें बिकवत का रेटिंग वाले एजेंसी पढ़ना है, एकरा पढ़ना है, इस लाइन में हम किसी ने कंपाइलेशन में दिया है तो हम पूरा पढ़ लेंगे. नो, वहां पे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते. यूपीएससी का एक कुछ मोटो रहता है, उस क्वेश्चन को डिकोडिंग करने का एक तरीका रहता है. सेम राइट आरबीआई करेंसी और इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि इस क्वेश्चन में ये 22 का ही क्वेश्चन है. ये वाले क्वेश्चन में पूछ ये क्वेश्चन, ऑल्दो inflation is too high, then RBI is to buy the government security. ये क्वेश्चन में लेने का एक ही मोटो है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन से पीवाईक्यू से एनालाइज करिए और सिलेबस पीवाईक्यू से बनाइए. हाई यील्डिंग टॉपिक ऑल्दो मैंने लिस्ट दिया है, उन टॉपिक का स्क्रीनशॉट आप आपके पास रखिए. आप खुद क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और आप क्वेश्चन को एक अप्रोच बिल्डिंग कीजिए कि क्रिटिकल क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है और क्या करना है. सो इन्फ्लेशन हाई है, आरबीआई लाइक टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अब पहला तीनों स्टेटमेंट है, ये जब ऐसा वाला है तो आपको पता है कि एक स्टेटमेंट प्योरली एलिमिनेशन वाला, एक स्टेटमेंट को कट मारिए, डेफिनेटली आंसर निकल जाए. तो आप यहाँ पे कंसेप्ट है कि सपोज मान लो कि इन्फ्लेशन हाई है. इन्फ्लेशन हाई क्यों रहता है? मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा. अगर मार्केट पे मनी सप्लाई ज्यादा रहेगा तो ये आरबीआई है जिसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है. चलो, आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट से बाय कर दी. इसका मतलब आरबीआई इज फ्लडिंग द मनी इन मार्केट्स. अगर आरबीआई मार्केट में मनी फ्लड कर रहा है तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? अगर मार्केट सप्लाई बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन हाई होगा. तो हाई इन्फ्लेशन पे आरबीआई को एक्शन लेना है तो आरबीआई क्या कर सकता है? इंस्टेड ऑफ बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, he will sell the government security. गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, मार्केट का पैसा खुद के पास लेगा. अगर मार्केट का पैसा आरबीआई के पास आता है तो आपका मार्केट का मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा. अल्टीमेटली इट विल योर इन्फ्लेशन विल रिड्यूस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, इट डायरेक्टली रॉन्ग. इवन यू डोंट नो द अदर थिंग्स, फिर भी हम उस दो पॉइंट्स पे जाएंगे. अब उसमें पूछा है कि रुपीज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई सेल द डॉलर. अभी देखो, आरबीआई के पास डॉलर का एक बॉक्स है, रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब आपका डॉलर इंक्रीज हो रहा है. यस, यानी कि मार्केट में डॉलर का सप्लाई ज्यादा है. उस चीज में आरबीआई लाइक टू सेल द डॉलर इन मार्केट्स.
डिप्रिशिएटिंग हो रहा है, एप्रिशिएटिंग नहीं। और उस चीज में ये सही चीज है। देन इंटरेस्ट रेट ऑफ यूरोपीय, अभी क्वेश्चन यही, ये क्वेश्चन की स्टेट देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते यार इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन का पूछ रहे, इंडिया का तो छोड़ दिया, इन्होंने यूरोप पे पहुंच गए। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में ही, फर्स्ट स्टेटमेंट पे इसका आंसर आ रहा है। फिर भी ये क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए और यूरोपियन यूनियन इज वेयर टू फॉल। चलो ये दिस विल हमारा इंडिया है और यहाँ पर एक यूरोपियन कंट्री वाला बैंक है, इसने इंटरेस्ट रेट यूरोपियन यूनियन फॉल किया, इंटरेस्ट रेट फॉल रहा, तो वहां का जो सिटीजन है जो कि हमारे लिए एनआरआई है, तो वो क्या करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। इससे इंडिया का क्या बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। उस टाइम में इंडिया में डॉलर फ्लड होगा, उसमें आरबीआई इंट्रोड्यूस टू बाय द डॉलर, और उस डॉलर को स्टेबलाइज करने की, सप्लाई स्टेबलाइज करने के आरबीआई क्या कर सकता है, डॉलर को बाय ही कर सकता है, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो इस तरह से क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उस अप्रोच से आप अप्रोच बिल्डिंग करोगे तो क्वेश्चन इजीली हो रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगेन देयर वाज अ इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे क्वेश्चन था, तो ये सीधा सीधा है, इसमें ज्यादा कुछ ये थिंक करने के नहीं है। ब्लैक मनी पे ऑल्दो एक क्वेश्चन था 2021 में था कि ब्लैक मनी, नाउ दिस ऐसे क्वेश्चन है जिसको डिकोड करने के लिए कोई डायरेक्टली मत जा, एक एक ऑप्शन पे आप सोच लो, लास्ट में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत फायदेशीर रहेगा। आप पहले जाओगे तो इट विल रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस ऑलवेज एंड टाइम, एंड इट्स विल बी नेगेटिव वाइब्स इन माइंड। So, chalo, here ask the effect of creation of black money in India has been the main cause of worry of government of India. Government of India के लिए क्या cause worry बन सकता है? First question is divergence of resources to purchase the real estate and investment in luxury house. इसका गवर्नमेंट पे तो ज्यादा कुछ ये नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड परचेस ऑफ द प्रीशियस स्टोन। चलो लोग ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इट नॉट बी द मोस्ट लेवल पे नहीं जाएगा, मेन वरी नहीं रहेगा, मेन कॉज। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म्स। अभी यहाँ पे रीजनलिज्म, ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी होगा तो भी पॉलिटिकल पार्टी को ही जाएगा और वहां से रीजनलिज्म बढ़ेगा, अल्दो विदाउट ब्लैक मनी भी बढ़ सकता है, दो देयर इज नॉट कॉन्सिक्वेंस। व्हाट इज दैट, लॉस ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेट ऑफ एक्सचेंज एंड टैक्स एवेशंस। आपको पता है हमारा टैक्स बेस है, अगर ब्लैक, व्हाट इज द ब्लैक मनी, डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी, जिसमें टैक्स एवेशन कर रहे हैं, टैक्स को छुपाने के लिए जो मनी ब्लैक से यूटिलाइज करते हैं, वो तो ब्लैक मनी का डेफिनेशन में ही टैक्स आता है। सो अगर ब्लैक मनी ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब टैक्सेशन का, जो टैक्सेशन से जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा वो बढ़ेगा ना। सो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन वाइज जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन और फिस्कल पॉलिसी का एक ये पूछा था, दिस क्वेश्चन ऑफ 2020। वो क्वेश्चन उस टाइम इजीली था क्योंकि ये रिपीटेड कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। आई थिंक 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला कि मोस्ट इन्फ्लेशन कब, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट क्या होगा, तो उसमें कि चलो रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेट, अगर पब्लिक डेट पे रीपेमेंट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बट इट नॉट द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। बोरिंग द मनी फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द डेफिसिट्स, तो इसका ज्यादा तो नहीं होगा। बोरिंग द मनी फ्रॉम बैंक, ये भी इतना नहीं है, बट आप देखिए क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, दिस इज वन थिंग। ये जिम्बाब्वे में हुआ था, वेनेजुला में हुआ था, इवन द श्रीलंका सेम। इसे हाइपर इन्फ्लेशन और गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो कि 2-3 डिजिट वाला इन्फ्लेशन रहता है। हेलीकॉप्टर मनी वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज होगा कि सेंट्रल बैंक, उस कंट्री का सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, डेफिसिट कट करने के लिए खुद ही मनी, दैट्स न्यू करेंसी को प्रिंट कर देगा, वो स्टिमुलेट तो कर देगा मार्केट अपना शॉर्ट टर्म्स के लिए ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें हाइपर इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात आती है, तो ये वाला सबसे मोस्ट इन्फ्लेशन रहता है, क्योंकि वेनेजुला में वहां पे 400 टाइम्स इन्फ्लेशन बढ़ा था। वही रीजन था कि उन्होंने करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था। यस, so we have also see some few of the questions from PYQ 2020 और 21 के कुछ क्वेश्चन मैंने लाए थे कि एक अप्रोच बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट में हमने बताया था कि एक माइक्रो नोट्स क्या कैसी होनी चाहिए। सम ऑफ द पिक्चर्स आई एम जस्ट पुटिंग फ्रॉम स्नैप हियर, कि आप इस तरह से टेबल बनाइए, आप दैट्स यू हैव टू पुट ऐसे वेन डायग्राम बनाइए, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये हर एक टर्म्स क्या है, और ये ऐसे इफेक्ट लीजिए कि सपोज कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी है तो क्या होगा,
एक्सपांशनरी पॉलिसी में क्या है, किन सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो किसी कंपाइलेशन से भी आप ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप हैंडमेड बनाओगे उतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा रहेगा। यस, सो दीज आर द सर्टेन फ्यूज कि यहाँ पे अगर देखो कि ये हाई पावर्ड मनी है, नैरो मनी में M1 के कंपोनेंट, M3 के कंपोनेंट क्या है, M4 के, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आप इन्फ्लेशन को डिकोड कर सकते हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, कॉज ऑफ एक्शंस क्या है। देन एक्सपोर्ट के पिक्चर्स जो कि स्पेशली आपकी इकोनॉमिक सर्वे से है, तो आप एक पिक्चोरिकल फॉर्म में रखोगे तो डेफिनेटली ये पिक्चर देखने के बाद आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं थिंग्स। सही, बहुत सारी कम्युनिटी और रिकमेंडेशन आते हैं, उसका भी एक आपको चार्ट बना चाहिए, वो चार्ट बाद में रिवाइज कर सकते हैं। देन तो कंपोनेंट है, ऑल्दो एक कंपोनेंट का प्रोफाइल ऐसा बाइफोकेट करके वहां पे आपके ट्रेंड्स को आप वहां पे भी लिखिए, या ये से बेटर है कि किसी का कंपाइलेशन ले लो, इतना ज्यादा खुद करने से बेटर कंपाइलेशन से ही कर दो। सेम थिंग्स कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट, रेवेन्यू अकाउंट के कंपोनेंट क्या है, रिसीप्ट साइड क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, और उसके साथ ये वाली जो टर्म्स है कि यार ये 31 लाख है, इस टर्म को थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि इसको आना था क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसा आपको एक फैक्चुअल थिंग देगी, एक फिगर देगी, उसमें जीरो ऐड कर देगी, वो तो डेफिनेटली है, या कम कर देगी, लेकिन उस जीरो की वैल्यू अंडरस्टैंड कीजिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का बजट कितना है, लमसम अमाउंट क्या है। वो एक्यूरेट तो मत कीजिए, लेकिन एक लमसम अमाउंट तो याद रखिए, ताकि उसको आप कोरिलेट कर सके अगर कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक फिगर पे आता है तो। सो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दिस वी हैव कंक्लूडेड कि ये 60 डेज में क्या रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच से कैसे जाना है, 2020 और 10-10 में कैसे डिवाइड करना है, पहले अगेन आपकी जो एनसीईआरटी उसको रिवाइव करना है, करंट अफेयर्स से कैसे जाना है। फिर भी स्टिल बेस्ड ऑन दैट there are certain few things will come from Ankura sites, and we trying to give, let's do it together to help to crack the prelim 2023. So उसके लिए हम कमिंग सुन एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज ला रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट बिल्डिंग थ्रू पीवाईक्यू, जैसे कि हमने अभी थोड़े पीवाईक्यू देखे, उसमें जैसे कंसेप्ट कैसे डिकोड करना है, उसी रेंज में एक ईयर वाइज हम लेंगे, जिसमें 22 से जितना हो सके, आई थिंक 2013 तक का पीवाईक्यू हम एक एक लेक्चर में कराएंगे। उससे हाई एंडिंग टॉपिक आपके ऑलरेडी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और उसी दिन आप करंट अफेयर को वहां पे अपडेट करोगे, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिटेड टू यू। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। बट आई जस्ट जाते जाते एक बात बता दूंगा कि ये प्रैक्टिसिंग यू कैन डाउनलोड योर अंकुर एस ऐप, सो वहां पे आप टेस्ट सीरीज फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ पेड होगी इफ यू फील द प्रैक्टिसिंग, जो कि अनपेड है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको लगता है कि दीज आर द क्वालिटी मटेरियल, देन यू कैन गो फॉर द पेड आल्सो, एंड यू विल अपडेटेड विद सम सर्टेन इनिशिएटिव्स, जैसे कि ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप सीरीज है, उसके बाद एक और इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे एक सीरीज आ जाएगा, और ऑल्दो उस पे एक प्रैक्टिस दैट एमसीक्यू बेसिक सीरीज एक और आ जाएगा। तो इन सब चीजों को आप रियल एक्सपीरियंस करने के लिए अंकुर ऐप से जुड़ सकते हैं। आपको हमारी बातें अच्छी लगती है, हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी वाले रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच जैसे अप्रोच सही से लगते हैं, तो जस्ट लाइक दिस सेशंस एंड प्लीज शेयर इट आल्सो। थैंक यू।